Hope you can listen to me. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. हमारी सोच से ज़्यादा हम पर रहम करने वाला और हमारा ध्यान रखने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला अल्लाह से जब बाजार नाले से शुरू था करीब प्यार. In a class again, this is class number 13 when we are talking to you by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and I welcome you on behalf of Sindhi बोलिए जो बाख्तियार इदारों मुख्तदरा सिंधी जुबान. अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, aloha, and welcome to this class number 13 of Sindhi language learning online course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And this is me, Asir Qazi, your instructor, and right now talking to you from Karachi, Pakistan, Karachi, Sindh, Pakistan, from the camp office of Sindhi Language Authority. And this is our course which we started right from the start of this new year 2024, rather one day before, on 29th of December 2023. So this is as per Pakistan Standard Time 5:03 p.m. and 5:33 p.m. as per Indian Standard Time. भारत जे मैरी वक्त जे मुताबिक 5:33 मिनट थिया आहिनि. Right now in UAE it is 4:03 p.m. In Saudi Arabia this is 3:03 p.m. This is 7:03 a.m. in the morning in London and most of the parts of the United Kingdom. And as far as the east coast of United States of America, the United States of America is concerned, and the foremost part of or the lastmost part as far as the Bermuda Triangle region is concerned of Canada is concerned, this is the 7:04 now, 7:03, no, still 7:03 a.m. in the morning. And as far as the rest of the parts of एशिया आर कंसर्न, खासतौर पर पैसिफिक रीजन का अगर हम जिक्र करें तो टोक्यो में, जापान में रात के 9:04 हुआ चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रात के 11:04 हुआ चाहते हैं और न्यूजीलैंड में रात के 1:04 हुआ चाहते हैं. वहां पर 18 जनवरी की तारीख शुरू हो चुकी है. त पोइ हींअर जेके असांखे ॾिसनि पिया साउथ ईस्ट एशिया में, ॾखण एशिया में, नंढे खंड में या मिडल ईस्ट में या मीना जे रीजन में, उन्हनि खे असां गुड इवनिंग चऊं था, लेट गुड मॉर्निंग और अर्ली गुड आफ्टरनून टू दोज हू आर वाचिंग अस एट लंडन, यूनाइटेड किंगडम एंड some of the parts of Europe. And as far as Washington DC, New Yorkers are concerned, Washington DCers are concerned, a very early good morning to all of those, and a late good evening to Australia people, to New Zealand people, and to most of the Asian people. So this is from this word is from Sindhi Language Authority. इसको तीनों जुबानों में आपको आना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जो इस वक्त आपकी मादरे इल्मी है, जो आपको सिखा रहा है, इस कोर्स को पढ़ा रहा है, वो इदारा है सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी. उसको सिंधी में क्या कहते हैं तो आपको आना चाहिए सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारों. दिस इज रिटन ऑन एवरी स्लाइड, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर एवरी प्रेजेंटेशन. हर क्लास की पहली स्लाइड पे वो लिखा होता है सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारों, Sindhi Language Authority. And if we translate it into Urdu, that would be मुख्तदरा सिंधी जुबान. मुख्तदरा सिंधी जुबान यानी सिंधी जुबान पर वो कादिर इदारा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में सिंधी जुबान को राइज करने के हवाले से अख्तियार रखता है. So a very warm welcome to all of you. If you are participating for the very first time, तो आपका खैर मकदम करते हैं और सबका खैर मकदम करते हैं, चाहे पहली मरतबा आप शामिल हो रहे हैं या फिर 13वीं मरतबा शामिल हो रहे हैं, लेकिन यू आर वेलकम इन आवर क्लास. तो ये जो पहली स्लाइड होती है इसको देख लिया करें गौर से, रन ऑफ द मिल ना समझा करें. यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद लिखा हुआ है. हैदराबाद सिंस इट्स हेड ऑफिस इज इन हैदराबाद, सो दिस इज सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारों हैदराबाद. And this is the logo of Sindhi Language Authority, Sindhi Boli Jo Bakhtiyaar Idaro. This is the logo of Hukumat Sindh, Government of Sindh. And this is the logo of the campaign running through Sindhi Language Authority, which says Sindhi Padho, Sindhi Likho, Sindhi Galayo. इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत तो है नहीं. सिंधी पढ़ो, सिंधी लिखो, सिंधी गहलायो. सिंधी बोली जागरता मुहिम. This is called Sindhi Boli Jagarta Muhim. Jagarta is the translation of Jagarta is awareness. ठीक है, आगही जिसको बोला जाता है. सो दिस इज क्लास नंबर 13. तो टुडे इज अरबा, व्हिच इज
derived from Ar-Rabah, yani char, Ar-Rabah. This is 17th of January 2024, and we welcome you to this class. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला जे बाबत आज हरे नाले सां शुरू जेको असां सभिनी जो धणी आहे, असां सभिनी जो मालिक आहे, असां सभिनी जे दिलनि जा राज ॼाणे थो, हम सब के दिलों के भेद बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमें क्या तलब है, किस चीज की तलब है और किस चीज का कितना तशक्कुर उसका इजहार हम करते हैं, ये सब वो जानता है। तो अल्लाह तबारक तआला के नाम से शुरू करते हैं। वल्लाहु अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो साराह सच्चो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़म जोड़ जहान जी। करे पाण करीम यानी वो खुद ही कादिर है अपनी अपने किए पर, हम उसको नहीं कह सकते कि तू क्या कर, वो जानता है, वो कुदरत रखता है अपने किए पर, और वो जो कुछ करता है उसकी हिकमत वो खुद ही जानता है। He doesn't need to explain any reason before anyone. So, after welcoming you in the class, there's a number of participants in my class who will tell me, who is going to tell me, जब भी मैं किसी से सवाल करूं नंबर 1, तो आप promptly without wasting any time आप आइए, अपना नाम बताइए, चाहे 10 मरतबा आए, लेकिन 10 मरतबा आए से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक मरतबा अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो फिर अपने दूसरे साथियों को मौका दें तो वे पार्टिसिपेट कन, तो जीअं घणे खां घणा दोस्त शामिल थी सघनि, घणे खां घणा असांजा स्टीम्ड लर्नर्स शामिल थी सघनि, त उन्हनि खे मौक़ो ॾिजो। पर जॾहिं तव्हां ॾिसो था त हिकिड़ो वैक्यूम आहे, हिकिड़ो सुवालु अहिड़ो आहे जंहिंजो जवाबु कोई नथो ॾे, त यू कैन कम, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड मेंशन योर नेम, चाहे 10 मरतबा आए लेकिन 10 मरतबा ही नाम बताएं, ठीक है, आप कौन हैं, और उसके बाद फिर सवाल के जवाब। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, कल हमने क्या किया था? कल की क्लास में व्हाट डिड वी डू? इज देयर एनीबॉडी टू टेल मी? मैं भूल जाता हूँ, भूलने की है थोड़ी सी शिकायत, तो मुझे याद नहीं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स, कैन एनीबॉडी रिमाइंड मी कि कल क्या था? हु इज देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई भी एक बात करे और उसके बाद फिर वॉलंटियर करे, फिर दूसरे को बारी बाद में दें। व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? आयशा खान। आयशा खान साहिबा, आयशा खान, कहाँ से आयशा खान साहिबा? हैदराबाद। हैदराबाद से या हैदराबाद से। हैदराबाद से? हैदराबाद से। हैदराबाद से जी। आयशा खान साहिबा, क्या पढ़ा था कल हमने? सर कल हमने ज़ेर की जदवल पढ़ी थी। जेर की जदवल में क्या क्या किया था, उसका क्या, कौन सा हिस्सा किया था? मश्क की थी हमने उसकी। ओके, मश्क की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा खान साहिबा। आयशा तारिक साहिबा जो हैं वो भी, शी इज रेजिंग हर हैंड। जी आयशा तारिक साहिबा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन ऐड। आयशा तारिक साहिबा, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम यस्टरडे सलाम। वी यस जी सर, कल हमने ज़ेर की जदवल जी मश्क की थी। ज़ेर जी जदवल जी मश्क। कुछ अंदाजा है कितने अल्फाज हमने सीखे थे नए इसमें, इस मश्क में? एनीबॉडी? 16 प्लस 16 प्लस थे। ओके, आपने गिन के बताया या अंदाजा लगाया? दरअसल लिस्ट जो कल हमने की थी ना, उसकी लिस्ट मेरे सामने है, तो अंदाजन उसमें तकरीबन 16 लाइंस होती हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आयशा तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी मेल, कोई हमारे मेल मेहरबान जो है वो ऐड करना अस्सलाम चाहें? वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान जकरिया बात कर रहा हूँ सर। जी इमरान जकरिया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डीआई खान में सर्दी कैसी है? सर, 1 महीना हो गई है, फोग है, नहीं जा रहा है, सूरज का नाम हमने नहीं देखा। ओए होए, तो फिर आज 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 फोग को ही सिंधी में सीखते हैं कि वर्ड ऑफ द डे में, कि फोग को क्या कहते हैं सिंधी में, ठीक है, क्योंकि फोग इतनी ज्यादा है तो उसका जिक्र करते हैं। लेकिन पहले मुझे बताइए कल हमने क्या सीखा था? कल सर हमने वो जो वर्ड ऑफ द डे में जो था, वो शबनम का जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स, उसको माक बोलते हैं। ओके, और ड्रॉप्स अगर लफ्ज साथ हो तो उसको फूड़ा बोलते हैं, माक फूड़ा। माँ का पढ़ा, ठीक है। और क्या सीखा था कल की क्लास में? जी सर। और क्या सीखा था इसके अलावा, वर्ड ऑफ द डे के अलावा?
मजमूई तौर पर सर और क्या इसके सीखा था? अलावा जो है ये एक नया आज के जुमले में जो है हमने वो सीखा था कि मैं इस बारे में जानता हूँ, इसको सिंधी में बोलते हैं मुंह के अन बाबत खबर आई। इन बाबत खबर आहे। बहुत शुक्रिया इमरान जकरिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, और कल क्या था, और क्या था कल? मश्क भी हमने की, वर्ड ऑफ द डे भी पता चल गया, और सेंटेंस ऑफ द डे, और इसके अलावा क्या था? एनीबडी वांट्स टू ऐड, एनी मेल और फीमेल? और क्या था मुश्किल रबिया से? है सर। जी, व्हाट्स योर गुड नेम? सॉरी। सर आपने रबिया। रबिया फ्रॉम हैदराबाद, और फ्रॉम कराची? जी हैदराबाद सर। यू आर फ्रॉम हैदराबाद, जी। जी सर आपने हैदराबाद। मलिर के बारे में बताया था। मलिर जो वर्ड है वो सिंधी वर्ड है। उसका मतलब क्या है? और आपने उसका सर सब्जो शादाब। सर सब्ज शादाब, लश ग्रीन, शाबाश। या बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रबिया साहबा। मुश्किल तरीन चीज क्या थी कल की क्लास में, कौन बताएगा? व्हाट वाज द हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल तल्ख तरीन चीज कौन सी थी? हु विल टेल मी, हु विल शेयर? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कल मुश्किल तरीन जो था वो हमारा असेसमेंट था सर। पहले आप आसान तरीन सवाल का जवाब दे दें, अपना नाम बता दें, उसके बाद। शादी सराज। शादी इसराज साहब, जी शादी इसराज साहब, क्या मुश्किल तरीन था? सर टेस्ट था हमारा जो 10 मिनट्स में हमें कंप्लीट करना था। अच्छा, तो वो मुश्किल तरीन था। क्या असेस किया आपने? आपने आपने की निकाली कि आपकी कितने नंबर आए होंगे कल के टेस्ट में? नहीं सर। आपने नहीं निकाली की? आपने नहीं देखे, चेक नहीं किए आंसर्स? नहीं, नहीं सर कुछ रह गए थे मेरे। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया जी शादी इसराज साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम वे मूविंग फॉरवर्ड, ये एक रिफ्रेशर जरूरी होता है, वार्म अप जरूरी होता है, आपके जहन, आपके अजहान को ये दावत देना जरूरी होती है, तो यो थोड़ो खोट रहे हो, तो कल छा थियो हुयो। इट इज नेसेसरी टू टू रिकैप करना कि कल क्या कुछ हुआ था, और जो कुछ हुआ था कुछ थोड़ी देर में उसका इमालनामा भी हम आपकी खदमत में पेश करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट हम पेश करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम हमारे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आज का लफ्ज, अज जो लफ्ज। कल से कराची में सर्दी की शिद्दत कुछ कम है, लेकिन पंजाब में या अपर सिंध में, अपर सिंध जिसको नॉर्दर्न सिंध कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर हम जब मिड ऑफ द कोर्स में पहुंचेंगे तो मैं आपको लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी के हवाले से सिर्फ नाम बता दूंगा, सिंध का मैप दिखाकर कि किस खत्ते को क्या कहा जाता है। जैसे पंजाब में है, पंजाब में अपर हिस्से को यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी और जेलम से ऊपर के हिस्से को पोटोहार कहा जाता है, फिर सेंट्रल पंजाब है, फिर लोअर रीजन जो उसका है वो साउदर्न पंजाब कहलाता है, और एक बलूचिस्तान से रीजन लगता है DI खान, जहाँ से हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान जकरिया है। तो वो मुख्तलिफ रीजन्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं, और वहाँ की जुबानों पर उसके नवाह का असर होता है। तो वो सिंध की लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त हम बात कर रहे हैं सिंध के बेशतर इलाकों और पंजाब के इलाकों में बहुत ज़्यादा फोग है, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो मुझे ऐसे मेहरबानों में से कोई बता सकता है कि जिनकी मादरी जुबान सिंधी नहीं है, लेकिन कहीं उन्होंने पढ़ा हो या किसी को बोलते सुना हो कि धुंध को सिंधी में क्या बोलते हैं? वो जिनकी मादरी जुबान सिंधी है वो नहीं बताएं, वो बताएं जिनकी मादरी जुबान सिंधी नहीं है। कहीं अगर चलते फिरते कोई लफ्ज कानों से, समाज से टकराया हो या कहीं पढ़ा हो, तो कैन एनीबॉडी टेल मी? अस्सलाम वालेकुम सर, कुहीड़ बोलते हैं, कुहीड़। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम सर। जी करीम साहब, जी करीम साहब बताओ। कुहीड़ सर सर गॉट इट इमरान साहब, आपका आपका नोट कर दिया मैंने, आपका आंसर, थैंक यू सो मच इमरान जकरिया साहब। आवाज आ रही है सर? जी करीम साहब, आपको आ रही है मेरी आवाज? झुड़ कहते हैं, झुड़। झुड़ तो नहीं कहते धुंध को, झुड़ तो उसको कहते हैं ना, बादल को। झुड़ या ककर, झुड़ या ककर बोलते हैं बादलों को। बहुत शुक्रिया करीम साहब फॉर योर झुड़ फीडबैक। झुड़ कहते हैं सर, झुड़ नहीं सर, झुड़ झुड़ नहीं कहते सर, झुड़ नहीं कहते मेरे भाई, झुड़। नहीं कहते, झुड़ नहीं कहते। झुड़ कहते हैं बादल को, क्लाउड को। जैसे कक्कर हमने सीखा था ना, कक्कर हमने पढ़ा था, कक्कर, झुड़, बादल, ये बादल को कहते हैं। झुड़ इज नॉट धुंध। धुंध यानी फोग जो होती है ना, जिसमें गाड़ियां टकराती हैं आपस में, खुदा न खास्ता वो। एनीबडी एल्स? थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बहरहाल आपने पार्टिसिपेट किया, सही या गलत की कोई बात नहीं होती, लेकिन यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस टू पार्टिसिपेट, कि आप बताएं, अटेम्प्ट करें। मसूद अहमद लगाई साहब तव्हांखे त ईंदो हुई, ज़ाहिर इस्तेमालु थींदो न, बट आई एम आस्किंग दोज हु डोंट हैव सिंधी एज देयर मदर टंग,
who are opting Sindhi as their second language? Anybody? Masood साहब इन लफ्ज़ खां अलावा जेकॾहिं कुझु पुछणु चाहियो था you may ask, otherwise I can go ahead. इन सवाल जो जवाब तव्हां न ॾिजो, छाकाणि तव्हांखे त ख़बर हुजणु घुरिजे, भले तव्हांजी सराइकी ज़ुबान हुजे पर सांगड़ में त घणी तणी सिंधी ॻाल्हाइजे थी. Therefore you must be knowing about the word. Anybody else? चलें जनाब, अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं. कोई भी चीज़ अगर ना मालूम हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है. छाकाणि त अॼु ताईं मालूम न हो, अॼु खां पोइ मालूम थींदो. कल्ह मूं ॿुधायो न, जंहिं वक़्तु अखि खुले हुनखे सवेरो समझिजे. अब तक सोए हुए थे, ठीक है, आंख खुली, अब सवेरा हो गया तो शुक्र करें कि अभी हुआ. बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती. एवरीबडी डजंट नो एवरीथिंग. जो चीजें आपको पता होंगी वो मुझे नहीं पता होगी, जो मुझे पता होंगी वो आपको नहीं. हर किसी का शोबा अलग अलग है. इत्तेफाक है कि वो चीज आज तक नहीं सीखी, लेकिन आज के बाद तो सीख ली ना. तो डोंट फील शाय कि अगर कोई चीज आपको नहीं आती. गलत बताएं सही, अटेम्प्ट जरूर करें. तो यहाँ पर कोई फेलियर और यहाँ पर कोई सक्सेस की बात नहीं हो रही, जस्ट इट्स अ पार्टिसिपेशन. तो वो लफ्ज जो है मोहम्मद इमरान ज़किया साहब ने किसी हद तक सही बताया, उसमें सिर्फ एक हर्फ का इजाफा होगा. ये कंप्लीट जो है. अच्छा, इन्होंने करीम साहब ने बताया झुड़. झुड़ कहते हैं बादल को, जो हमने कक्कर पढ़ा था ना, कक्कर, उसी का साइनोनिम है झुड़. झुड़ कहते हैं बादल को, क्लाउड को, सहाब को. अरबी में उसको सहाब बोला जाता है. ठीक है, मस्जिद सहाब आपने सुना होगा, बादल वाली मस्जिद. तो झुड़ जो है दैट्स क्लाउड, दैट्स नॉट धुंध. धुंध जिसको फोग बोलते हैं. इज देयर एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग? जी सर, नदीम साहब कोहीड़ो तो तमाम सोना मां जी सर, उन्हनि नदीम सोना मां कोहीड़ो उन्हनि खां कोहीड़ो पुछो सो साहब, मूं उन्हनि खां पुछो हो जिनजी सिंधी मादरी ज़ुबान न आहे. पर बहरहाल तव्हांजे पार्टिसिपेशन जी महिरबानी, वॾी महिरबानी. सिंधी खे त ख़बर हूंदी न, पर जिनजी न आहे मादरी ज़ुबान, मूं उन्हनि खां पुछो. पर मिठा तव्हांजी महिरबानी, तव्हां हुन में फीडबैक ॾिनो. So that is the word cohido. Look at the word, look at the shape of the word, how it is written. This is cohido. Look at the red word and then look at the bottom, how it is pronounced. Cohido, cohido. This should be double R. Cohido. This is fog, dhund. Dhund को सिंधी में बोलते हैं कोहिडो. काफ और वाव जबर के की हरकत जबर के सुर के साथ मिले हुए हैं. हे और ये जेर की हरकत के साथ मिले हुए हैं. रे और वाव जबर की हरकत के साथ मिले हुए हैं. 3 पदों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है. 6 हुरूफ और 3 पदों पर, 3 सुरों पर मुश्तमिल, 3 हिस्सों पर. पहला हिस्सा है को, दूसरा है ही, तीसरा है डो. कोहिडो. कोहिडो इज धुंध. अगर कोई कहे कि कोहिडो आहे या कोहिड़े जो ख्याल कजां, मीन्स धुंध का ख्याल करना. ड्राइव करते हुए धुंध का ख्याल रखना, कोहिड़ो. ठीक है. कम धुंध है तो थोरो कोहिड़ो. ज्यादा धुंध है तो ॾाढो कोहिड़ो, घणो कोहिड़ो, इलाही कोहिड़ो, जाम कोहिड़ो. ठीक है. ये तमाम अल्फाज जो हैं वो जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जाम, इलाही, ॾाढो, खोड़ सारो, ये अल्फाज सिंधी में एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. किसी भी चीज के वॉल्यूम को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. कोहिड़ो इज द बेसिक वर्ड के जो धुंध के लिए, फोक के लिए इस्तेमाल होता है. नीचे उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है. अब आते हैं सेंटेंस ऑफ द डे पर. इज इट क्लियर? कोहिड़ो इज क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट कोहिड़ो? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट कोहिड़ो. इफ इट इज क्लियर देन वी आर मूविंग टू सेंटेंस ऑफ द डे. सर रबिया है जी रबिया. सर, ये बता दें आपने जाम और इलाही बताया है ज्यादा जी, के लिए, और जी. कौन से अल्फाज हैं? खोड़ सारो, खोड़ सारो, या खाली खोड़ भी हो सकता है. खोड़, खोड़ मीन्स बहुत ज्यादा. वैसे खोड़ लफ्ज की लफ्जी मायना जखीरे के हैं. खोड़ मीन्स जखीरा. खोड़ मीन्स माँ खोड़ परेशान है, मीन्स मैं बहुत परेशान. माँ खोड़ सारो परेशान है, मैं बहुत ज्यादा परेशान. खोड़ सारो कोहिड़ो आहे मीन्स बहुत ज्यादा धुंध है. खोड़ कोहिड़ो आहे, इलाही कोहिड़ो आहे, जाम कोहिड़ो आहे, तमाम घणो कोहिड़ो आहे. ये तमाम अल्फाज जो हैं वो उसके वॉल्यूम को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल. क्लियर? थैंक यू सर. वेलकम. जनाब, तो आगे चलते हैं आज के जुमले की तरफ. आज जो जुमला, आज का जुमला भी हमने इसी से एसोसिएटेड रखा है ताकि ये लफ्ज इस्तेमाल कैसे होता है उसका पता चल सके. और वो आज का जुमला है अज ॾाढो कोहिड़ो आहे.
वही जो मैंने बताया, डाढो, इलाही, जाम, जाम सारो, खोड़ सारो, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम वो सही हैं। जैसे उर्दू में होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, काफी सारा, बहुत सारा, ढेर सारा, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसके वॉल्यूम को बड़ा दिखाने के लिए। तो आज बहुत ज्यादा धुंध है, इट्स एक्सट्रीम फोग टुडे, इंग्लिश में भी इट्स एक्सट्रीम फोग टुडे, इट्स सो फोगी टुडे, इट्स हार्ड फोग टुडे, इट्स टू फोग टुडे। तो उसको सिंधी में बोलेंगे, एक तरीका ये है, वैसे सिंधी में 10 तरीकों से बोला जा सकता है, लेकिन एक तरीका आपको आना चाहिए इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दिस सेंटेंस और दिस एक्सप्रेशन। तो उसका एक तरीका ये है, अज, अज मीन्स आज, अज मीन्स आज, टुडे। अज, डाढ़ो, वो जो मैंने बताया, डाढ़ो मीन्स बहुत सारा, डाढ़ो मीन्स बहुत सारा, वेरी। कोहिडो मीन्स धुंध, जो मैंने आपको बताया। आहे मीन्स है। अज, आज, डाढ़ो बहुत सारा, कोहिडो धुंध, आहे है। अज डाढ़ो कोहिडो आहे, आज बहुत ज्यादा धुंध है। अज डाढ़ो कोहिडो, अब डाढ़ो की जगह जैसे मैंने बताया, अज खोड़ सारो कोहिडो आहे, अज खोड़ कोहिडो आहे, अज इलाही कोहिडो आहे, अज जाम कोहिडो आहे, अज जाम सारो कोहिडो आहे। तो वो ये एडजेक्टिव चेंज होगी। ये एडजेक्टिव है जो कि मिकदार को भी शो करती है, किसी खूबी खामी बयान करने के साथ साथ मिकदार को, कद को, उसके वॉल्यूम को जाहिर करे जो लफ्ज, वो भी एडजेक्टिव कहलाता है, सिफत कहलाता है। जब हम व्याकरणी पढ़ेंगे, सिंधी में ग्रामर को व्याकरणी बोलते हैं, तो जब हम व्याकरणी पढ़ेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा कि जो लफ्ज अच्छा बुरा बयान करे, किसी का खूबी खामी बयान करे, या उसकी तादाद या मिकदार या वॉल्यूम बताए, वो एडजेक्टिव है। उर्दू में वही यही डेफिनेशन है, इंग्लिश में भी यही है। गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, ये तमाम जो है रंग भी उसमें आते हैं, एडजेक्टिव में आते हैं, गो कि वो नाउन्स हैं। लेकिन तो ये डाढ़ो जो है वो एडजेक्टिव है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, खोड़ सारो, इलाही सारो, ढेर सारो। ढेर सारो सिंधी में कहते हैं, ढेर सिंधी में, सिंधी का भी लफ्ज है। तो आज डाढ़ो कोहिड़ो है, आज बहुत ज्यादा धुंध है। एनी क्वेश्चंस? ये समझ में आ गया? इस जुमले की फॉर्मेशन समझ में आ गया? जी रबिया। सर लाइक अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे? अज घट कोहिड़ो है, अज घट कोहिड़ो है, या अज कोहिड़ो घट है। आज कम, आज धुंध कम है, वो कहते हैं ना, आज धुंध कम है। घट, ठीक है, घट, घट कहते हैं कम को। सर आज, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी। सर अगर ये बोले खोट, आज तो खोट तो उसको कोहिड़ो आ- नहीं, तो उसका उसको फॉर्मेशन बदल जाएगी, वो होगी अज कोहिड़े में खोटा है, कोहिड़े हो जाएगा, ये वाव की जगह पर कोहिड़े हो जाएगा। उसकी जमीरी पछाड़ियों, उसको हम इसमी पछाड़ियों हम कहते हैं कि उसकी इस इसम की जो उसका जो एंड है, उसका जो इख्तितामिया है, वो तब्दील हो जाएगा। अज कोहिड़े में खोट आए, यानी आज धुंध में कमी है। या अगर मैं ये पूछूं कि क्या दोपहर तक धुंध में कमी आएगी, नहीं आएगी, कमी होगी, नहीं होगी, तो मैं ये पूछूंगा, अगर मैं मौसमियात से पूछ रहा हूं, तो वो सवाल ऐसे होगा फॉर्म कि छा कोहिड़े में खोट ईंदी, या कोहिड़े में घटताई ईंदी। घटताई अगेन सिनोनिम ऑफ खोट, जो हमने पढ़ा था, कमी। लेकिन वहां पर ये जो वाव है कोहिड़ो का, वो ये के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, इसकी पछाड़ी, इसका एंड, इसका इख्तितामिया तब्दील हो जाएगा। ये ग्रामर की डिमांड है, ठीक है। तो अज कोहिड़े में खोट आए, या अगर मैं पूछूं छा कोहिड़े में खोट ईंदी, छा कोहिड़े में कमी, कमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोट के सायनियम के तौर पर हम कमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस और वी शुड मूव फॉरवर्ड? चलें जनाब, कोई अगर क्वेश्चन हो दरमियान में तो यू कैन रेज योर हैंड, एंड एट द सुटेबल टाइम आई विल इनवाइट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ड्रॉप इन एंड आस्क योर क्वेश्चन। सो जिक्र करते हैं, जिक्र उस परिवेश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस असाइनमेंट का और फिर बयां अपना। कल हमारी क्लास असाइनमेंट नंबर 1 थी, असेसमेंट थी एक्चुअली। असेसमेंट का मतलब यही होता है कि तशखीस करें, हम एनालाइज करें और डायग्नोज करें कि कौन सी चीजें हमें समझ में आई हैं, कौन सी चीजें समझ में नहीं आई। अब आपको क्लास का पेस जो है वो थोड़ा सा पकड़ वाला महसूस होता होगा, थोड़ी सी मॉनिटरिंग वाला महसूस होता होगा। अगेन लेट मी रिपीट, लर्निंग प्रोसेस में
फेलियर और सक्सेस की फिक्र ना किया करें, यू मस्ट ऑप्ट। और जिंदगी के हर मुकाबले में, कोई मुकाबला हो, उसमें पार्टिसिपेट करना बड़ी बात होती है। इफ यू पार्टिसिपेटेड यू वन, ओके। तो इसलिए ये नहीं होता कि मेरे नंबर कम आ गए या ज्यादा आ गए, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट एन असेसमेंट। जैसे हर 6 माह के बाद हर सेहतमंद इंसान को टेस्ट करवाना चाहिए कि मेरा शुगर लेवल क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, और मेरा हेमोग्लोबिन कितना है, ताकि पता चल सके कि जहां जहां पर आपको जरूरत है वहां वहां पर इंप्रूवमेंट हो। तो दिस इज क्लास असेसमेंट नंबर 1, उसका जिक्र करते हैं। कल की जो तशखीसी जो हमारा टेस्ट था उसका जिक्र करते हैं। तो हम जिक्र करेंगे कि हमारे पास जो सवालात थे वो कौन कौन से थे। पहले हम उनकी की ढूंढने और उसके बाद फिर स्कोर्स पर आते हैं। तो सवाल जो सही जवाब, जो सवालात हमने किए थे उसके दुरुस्त जवाब वो कौन से हैं, करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन, जो हमने 10 सवालात आपको दिए थे। ठीक है, आप में से कितनों ने इस टेस्ट के बाद तलाश किए प्रीवियस स्लाइड्स में से कि जो सवालात आए हैं उनके सही जवाब कौन कौन से थे? और या बहुत सौ ने मेरी तरह ऐसे छोड़ दिया यार जो होगा देखा जाएगा। कौन क्यूरियस था ये ढूंढने के लिए कि इन सवालात के जवाब ढूंढने? पिछली स्लाइड्स में देखो यार, क्या कौन सा इस सवाल का क्या जवाब था? कोई, इज देयर एनीबडी हु फाउंड हिज ओन और हर ओन की और टैली किए कि मेरे कौन से सवालात सही हैं कौन से गलत हैं? इज देयर एनीबडी? अगर है तो ही और शी कैन शेयर विद मी। या सब मेरी तरह ही है? तो अल्लाह मालिक है, कल अल्लाह मालिक का सुभान अल्लाह। चलिए ना, हाँ, देयर इज एनीबडी, there is somebody who is there, please mention your name. Can you hear me? Please mention your name. You have unmuted yourself. Who is there? अच्छा, आयशा तारिक साहब आप आ जाइए। अगर हमारी साहब मुझे नहीं सुन पा रहे तो आयशा तारिक साहब, you can add, you want to add anything? आयशा तारिक साहब, you? Yes, sir. जी। Sir, from the PPTs, I tried finding the answers, Then and few of could them you- were so simple. Because of the limited time, I was not able to find the correct answer, और definitely memory ने इतना साथ नहीं दिया, तो मेरे कुछ responses गलत हुए। Okay, सही। तो Barrel, you tried, that's appreciable, thank you. Anybody else who tried to look for the answers? Anybody else? If not, we are now first of all sharing with you the correct answers, right? पहले सवाल था उनके जवाब। पहला सवाल था, is there anybody you want to add, quickly add, so that I may move forward? Who is there? Please mention your name and then share what you want to share. चले जरा, हमारा पहला सवाल था, सिंधी आयोटा जी पट्टी में टी पट्टी केड़ी है? Who is there? Who has unmuted? Please mention your name and share what you want to share. Otherwise, mute yourself. I will have to check who is there, and then I will have to analyze. Okay, let me share with you who is there. Who has unmuted him or herself? If you want to add anything, you can. Otherwise, mute yourself. I hope you understood and you listen to me. पहला सवाल था, सिंधी आयोटा में, आयोटा अब तक आपके जहन में आ चुका होगा, हम हुरूफ तहजी को, अल्फाबेट्स को आयोटा कहते हैं। आयोटा के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और वो तमाम अल्फाज सिंधी में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उनमें से कुछ इंडिजीनियस सिंधी के अल्फाज हैं और कुछ हमने मुस्तार लिए हैं अरबी से। ठीक है, तो वर्णमाला, वर्ण पट्टी, अलिफ बे, सिंधी पट्टी, अलिफ बे की पट्टी, आयोटा, तो ये तमाम जो हैं ये अल्फाबेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला सवाल था, सिंधी आयोटा जी पट्टी में टी पट्टी कहिड़ी है? जो 20 पट्टियां, 20 जदवलें हम कह रहे हैं, उनमें से तीसरी पट्टी कौन सी है? सिंधी हुरूफ तहजी की 20 जदवलों यानी पट्टियों में से तीसरी जदवल कौन सी है? Which is the third table out of Sindhi alphabets? 20 tables यानी पट्टी। तो उसका सही जवाब था, क्या था? उसका सही जवाब था जबर जो चार्ट या जबर जी जदवल या जबर जी पट्टी। जबर जो चार्ट, जबर जी पट्टी या जबर जी जदवल। करेक्ट। Second question was,
कलहुड़ा दौरजे केड़े आलिम सिंधी बोलिए जी मौजूदा फारसी अरबी लिपि जोड़ी। लिपि कहते हैं स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट इज कॉल्ड रस्मुल खत इज कॉल्ड। जुबान दो चीजों पर होती है ना, एक जो आप सुनते हैं, अगेन रीडिंग अगेन लैंग्वेज स्किल्स आ गए, तो एक जो लिखाई है, वो जो लिखाई है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, सेकंड लेक्चर में भी आई रिपीटेड, कि सिंधी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में इंडिया में लिखी जाती है, यहाँ पर पर्शियो अरेबिक में लिखी जाती है। जुबान वही है, जब उसको पढ़ेंगे तो वो सेम ही होगी, यानी जब पढ़ाई में आएगी तो वो सिंधी ही होगी, लेकिन बॉर्डर के उस पार उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। यहां पर हमारे यहाँ उसको अंग्रेज दौर के बाद से लेकर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसमें कुछ हरूफ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, राइट। तो ये है उसकी लिपि, ये है उसका स्क्रिप्ट। जो आप सुनते हैं ये है वो बजाते खुद जुबान। तो वो स्क्रिप्ट और बोलने वाली जुबान मिलकर जो है वो एक लैंग्वेज फॉर्म करते हैं। तो लिपि का मतलब है स्क्रिप्ट। जैसे पंजाबी पाकिस्तान के पंजाब में पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उर्दू की तरह, फारसी की तरह लिखी जाती है। लेकिन जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, जैसे आप वाघा क्रॉस करके अटारी में दाखिल होगे, तो वहां पर वही पंजाबी जो बोलने में वही है, लेकिन वहां पर गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट चेंज हो गया, जुबान वही है। तो ये जो लिपि लफ्ज आप देख रहे हैं, लिपि इज द प्योर वर्ड फॉर, नीचे देखें उसका तर्जुमा रस्मुल खत। लिपि इज रस्मुल खत, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। नीचे देखें स्क्रिप्ट, रस्मुल खत, लिपि। लिपि इज रस्मुल खत, आयोटा इज अल्फाबेट, राइट। कलहुड़ा दौरजे केड़े आलिम सिंधी बोलिए जी मौजूदा फारसी अरबी लिपि जोड़ी। कलहुड़ा दौर के किस आलिम ने सिंधी जुबान का मौजूदा फारसी अरबी रस्मुल खत बनाया? Which scholar of Kaloda period made the current Perso-Arabic script of Sindhi language? He was Makhdoom Abul Hasan Dahiri Thatwi. He was from Theta. Makhdoom Abul Hasan Dahiri Thatwi, right? His name was Makhdoom Abul Hasan Dahiri Thatwi. तीसरा सवाल था, ये आप नोट करते जाएं कि सही जवाब मैं आपको की बता रहा हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। तीसरा सवाल था, सिंधी बोलियों में अरबी लिपि, अगेन लिपि लफ्ज आया जो मैंने आपको बयान किया, स्क्रिप्ट, रस्मुल खत, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट इट, द वे ऑफ राइटिंग इट, दैट इज कॉल्ड लिपि। उनके लिपि चेबो है, स्क्रिप्ट के रस्मुल खत के सिंधी में लिपि चेबो है। दिस कुड बी द क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट 2 नेक्स्ट वीक। नोट कर लीजिए कि लिपि किसको कहते हैं, रस्मुल खत को, स्क्रिप्ट को सिंधी में लिपि बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, सिंधी बोलियों में अरबी लिपि जे 28 अखरन में घणा अखर शामिल हैं, यानी देर आर टोटल 28 लेटर्स इन अरेबिक अल्फाबेट। उनमें से कितने सिंधी में शामिल हैं? सिंधी बोली में अरबी लिपि जे 28 अखरन में घणा अखर शामिल हैं। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, ऐसी कोई चीज नहीं जो अचानक से वारिद की गई आप पर। सिंधी जुबान में अरबी हरूफ तहजी के 28 में से कितने हरूफ शामिल हैं? हाउ मेनी आउट ऑफ 28 लेटर्स ऑफ द अरेबिक अल्फाबेट्स आर देयर इन द सिंधी लैंग्वेज? इसका सही जवाब है 27। एक को छोड़ के वो जो था काफ, वमा अदराक वाला काफ जो है, यानी वो है तो सही लेकिन उसकी शेप अलग है, तो वो उस काफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ सिंधी में मौजूद हैं। 27 out of 28 alphabets of Arabic script are very much included in Sindhi, right? अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। सवाल नंबर चौथा और तीसरा आइडेंटिकल है, लेकिन वो अरबी के बारे में मैंने पूछा, अब ये फारसी के बारे में पूछा कि सिंधी जुबान में फारसी लिपि क्यों पूछ रहे हैं दोनों, क्योंकि ये पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट है, याद रहे, फारसी और अरबी, पर्शियो अरेबिक यानी फारसी और अरबी मिलाकर। तो सिंधी बोलिए में जैसे मैंने पूछा कि अरबी के कितने हरूफ हैं, तो सिंधी बोलिए में फारसी लिपि जे 32 अखरन में घणा अखर शामिल हैं, यानी देयर आर टोटल 32 लेटर्स इन पर्शियन अल्फाबेट। उनमें से सिंधी में कितने शामिल हैं? सिंधी जुबान में फारसी हरूफ तहजी के 32 में से कितने हरूफ शामिल हैं? हाउ मेनी आउट ऑफ 32 लेटर्स ऑफ द पर्शियन अल्फाबेट्स आर देयर इन सिंधी लैंग्वेज? इसका सही जवाब है 29। दो को छोड़ के, ये उसके ये में नुक्ते नहीं हैं, और ये इनको छोड़ के बाकी तमाम 29 हरूफ सिंधी में मौजूद हैं। तो देखें, 28 वाली में से 27 मौजूद है और 32 वाली में से 29 मौजूद हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इतने ज्यादा हरूफ के इम्तजाज से ये जुबान बनी है, तो इसका सही जवाब है 29। पहले का सही जवाब था 27। तो
उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 5 पर। वो है सिंधी में लफ्ज के छा चइबो आहे। लफ्ज तो अरबी का लफ्ज है ना, वर्ड, लफ्ज, उसका सिंधी इंडिजिनस लफ्ज कौन सा है? ये हमने वर्ड ऑफ द डे में पढ़ा था, मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी क्लास में। सिंधी में लफ्ज के छा चइबो आहे, सिंधी में लफ्ज को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑल्टरनेट वर्ड फॉर वर्ड इटसेल्फ? व्हाट डू वी कॉल अ वर्ड इन सिंधी? उसका सही जवाब है बोल। बोल। याद है मैंने आपको बताया था कि रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि इस गाने के बोल लिखे हैं, यानी लफ्ज लिखे हैं, अल्फाज लिखे हैं, बोल, और लफ्ज को कहेंगे बोल। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि लफ्ज को हम कहेंगे बोल। जब हम लफ्ज यानी सिंगुलर की बात करेंगे तो उसको कहेंगे बोल, लेकिन अगर हम प्लूरल में लफ्ज को बयान करेंगे तो प्लूरल में इस पेश की जगह पर जबर आ जाएगी। आई होप यू कैन सी माई स्लाइड्स। आई होप माई स्लाइड्स आर विजिबल टू यू। तो बोल कहेंगे एक लफ्ज को, और बोल कहेंगे एक, दो या दो से ज्यादा अल्फाज को। बोल, बोल यानी हिकड़ो बोल, एक लफ्ज, सिंगुलर वर्ड, और अगर एक से ज्यादा अल्फाज हैं, 2 हैं या 200 हैं या 2 लाख हैं, तो उसको कहा जाएगा बोल। राइट? अल्फाज, अल्फाज तो कितने भी हो सकते हैं, सैकड़ों करोड़ों भी हो सकते हैं, क्वाड्रिलियंस हो सकते हैं, ट्रिलियंस हो सकते हैं। तो बोल का मतलब एक लफ्ज, बोल मीन्स बहुत सारे अल्फाज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। है ना जुमले जो सिंधी में तर्जुमा करो, इस जुमले का सिंधी में तर्जुमा कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंधी। वो जुमला क्या था? आप क्या खाना पसंद करेंगे? whenever you are about to serve anything, you want to serve anything, there's a guest in your house or at your place and you want to serve him something, tea, coffee, lunch, dinner, snacks, etc. You would be asking him or her that what does he or she or they would like to have. वो क्या खाना पसंद करेंगे? What would you like to have? तो उसका जवाब, उसका तर्जुमा होगा सिंधी में, तव्हां छा खाइण पसंद कंदव? तव्हां छा खाइण पसंद कंदव? राइट? तव्हां मीन्स आप, छा मीन्स क्या, खाइण मीन्स खाना, पसंद मीन्स पसंद, कंदव यानी करेंगे। आप क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? तव्हां छा खाइण पसंद कंदव। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर इस जुमले में आधा आपने सही, आधे अल्फाज सही लिखे हैं और आधे सही नहीं लिखे, तो उसको हमने सरीहन गलत नहीं किया, उसको फिर हमने हाफ मार्क्स दिए हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। आप खुद ही इस वक्त मार्किंग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो सवाल, इसका जवाब गलत हो गया, अरे यार इसका, हाँ ये सही हो गया, यार ये मैंने आधा सही दिया था, आधा गलत हो गया था। तो आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पर आपको आधे मार्क्स मिले होंगे, कहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे। तो ये ध्यान रखिए, तमाचा खान पसंद करना। उसके बाद 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 इज उर्दू अंग्रेजी में वर्ण पट्टी या वर्णमाला छाखे चवंदा आहिनि। वर्णमाला या वर्ण पट्टी दोनों सिंधी के अल्फाज हैं, सिंधी का एक मुरक्कब लफ्ज है। वर्ण पट्टी या वर्णमाला या वर्णमाला, इसको उर्दू या सिंधी में क्या बोलते हैं? ये सवाल था, सिंपल सवाल है। अंग्रेजी और उर्दू में वर्ण पट्टी को क्या कहते हैं? व्हाट इज वर्ण पट्टी और वर्णमाला इन सिंधी और इन इंग्लिश और इन उर्दू? मैंने अभी आपको सिनोनिम्स बताए अल्फाबेट्स के, पट्टी, आयोटा, अलिफ बे, अल्फाबेट, और उसके अलावा वर्ण पट्टी या वर्णमाला, ये तमाम अल्फाज अल्फाबेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 7वें सवाल का सही जवाब है हुरूफ तहज्जी, या इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसको उर्दू या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं हुरूफ तहज्जी। वर्णमाला, वर्ण पट्टी, अलिफ बे, पट्टी, ये जो है, या बुनियादी जदवल या पहली जदवल, ये तमाम हुरूफ तहज्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में उसको अल्फाबेट बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है, अगर आपने अल्फाबेट लिखा है तो भी सही है, यानी उर्दू या अंग्रेजी दोनों में से किसी में एक में बताना था। बहुत सारे मेहरबानों ने दोनों लिखे हैं, तो उनकी मेहरबानी। तो हुरूफ तहज्जी अल्फाबेट इस सवाल का सही जवाब है। फिर है कि स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की जो रंगों की डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्मेशन है, उसको समझने के लिए तरतीब है विब गियर की। वायलेट, इंडिगो ब्लू, VIB, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, वाई और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विब गियर के लिए सिंधी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? सिंधी में विब गियर का मुतबादिल लफ्ज क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेट वर्ड फॉर विब गियर इन सिंधी? अभी परसों ही पढ़ा था कि जिससे हमें ये सहूलत हो याद रखने के लिए, जहन नशीन करने के लिए कि रंग रोशनी की पट्टी में किस तरतीब के साथ होते हैं। वो सही लफ्ज है गुत्त पसानो।
गुत्तपसानो, यानी उसकी तरतीब ये होगा गाढ़ो, तरंजी, पीलो, साओ, आसमानी, नीरो, वांगड़ाई, गुत्तपसानो। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 8। वेब गियर का सिंधी में ऑल्टरनेट वर्ड है गुत्तपसानो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो है सिंधी अलिफ बे पट्टीअ में ढाल सां कहिड़े जानवर जो जिक्र ईंदो आहे। हुरूफ तहजी में सिंधी हर्फ ढाल के साथ किस जानवर का हवाला दिया जाता है और उसका क्या मतलब? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, whoever has unmuted, please mute yourself. We are in the middle of the conversation. Please don't ask any question in the middle of the conversation, and don't let me find that who is unmuted. Please mute yourself voluntarily because I'm in the middle of in a pace of telling you something. हुरूफ तहजी में सिंधी हर्फ ढाल के साथ किस जानवर का हवाला दिया जाता है, उसका मतलब क्या है? असल लफ्ज सिंधी में भी लिखे हैं, उसका तर्जुमा भी लिखे। Which animal is referred with Sindhi letter dhal or dhe in the alphabet, and what does it mean? Write the original word in Sindhi and its translation. And this word is dhago. Dhal ya dhe. This is dhe. Dhago means bell, ox. This is ox. This is the male of cow. This is the husband of cow or big brother of cow. So this is called dhago. Dhal, dhago ya dhe, dhago, which is bell, which is ox, right? तो इस सवाल का सही जवाब जो था सवाल नंबर 9 का वो था ढगो। ढगो मीन्स ऑक्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, सिंधी बोलिए जा टे इल्लत अखर कहना है। सिंधी जुबान के 3 हुरूफ इल्लत कौन से हैं? व्हाट आर द 3 वॉवेल्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज? सिंधी जुबान जा वॉवेल्स कहना है और वो हैं अलिफ, वाव और ये, जिनके बगैर सिंधी का कोई भी लफ्ज बन नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंग्लिश में AEIOU के बगैर जो है कोई लफ्ज बन नहीं सकता। ठीक है, अलिफ, वाव और ये। तो ये था ये थी हमारी की कि कौन कौन से सही जवाब हैं उन सवाल के। बिफोर शेयरिंग स्कोर्स विथ यू, अगेन लेट मी रिपीट कि डोंट फील शाय कि अगर किसी के नंबर्स कम आए हैं, किसी के ज्यादा आए हैं, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, दिस वॉज नॉट अ कॉम्पिटिशन, दिस वॉज जस्ट टू प्रोवोक यू टू लर्न। अब पहला टेस्ट था, अब आपको पता चलेगा कि ये चीजें रैंडमली नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि हर लेक्चर में जो मुनफरिद चीजें, शायद आप रात को ही उनका क्विज बनाना शुरू कर दें, उनके MCQs बनाना शुरू कर दें कि अलग से लिखें, इनमें से सवाल आ सकता है। एंड वेन एवर यू गेट टाइम इन ड्यूरिंग योर वीकेंड, क्योंकि हर मंडे को ये टेस्ट होगा, तो आप उसको गो थ्रू करेंगे कि आज की क्लास में जो है वो MCQs ये थे, आज की क्लास के क्विज हमने ये निकाले थे, नेक्स्ट क्लास के क्विज ये हैं। तो उनको आप एक नजर देख लेंगे। फर्ज करें 5 क्विज आप रोजाना निकालते हैं, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25-30 आपके MCQs निकलेंगे। उनको गो थ्रू कर लेंगे तो आपका टेस्ट आसान हो जाएगा असेसमेंट का। तो दिस इज हाउ टू मोल्ड यू टुवर्ड्स लर्निंग। तो इसमें आप ये महसूस नहीं कीजिएगा अरे मेरे नंबर कम आ गए, मेरे ज्यादा आ गए। दिस इज जस्ट एन असेसमेंट, नथिंग एल्स, राइट? ऑल आर इक्वल एंड all have passion of learning. त असांखे अनुदेशक कोन्हे को तव्हां में पैशन कोन्हे को लर्निंग, पर इहो आहे त इहो फ़क़ति तव्हांजो पेस तेज़ करण जे लाइ, तव्हांजो टेम्पो तेज़ करण जे लाइ इन क़िस्म जूं जेके असेसमेंट्स आहिनि ज़रूरी आहिनि। ऐं हाणे वीकली असेसमेंट थींदी एंड यू विल कम टू नो दैट वी आर जस्ट एग्जामिनिंग के हाउ मच यू आर लर्निंग, ताकि जिते जिते का खोट आहे तो उनखे पूरो करने की कोशिश कजे। तो जनाब हम टॉप से नीचे आते हैं और मैं चाहता था कि 10 नंबर्स के साथ कोई हमारी क्लास में हो, अगर अनफॉर्चुनेटली 10 नंबर्स किसी के नहीं हैं, लेकिन टॉप स्कोरर्स में से, मतलब टॉप में अगर हम देखते हैं लिस्ट में, तो पहला नाम है आयशा खान साहिबा का और उनके नंबर्स हैं 9। उनका एक जो सवाल के जवाब थे या तो उन्होंने नहीं दिया होगा या तो उनका गलत होगा। तो पहला जो उनका ये पहले नंबर पर जो नाम है वो आयशा खान साहिबा का है, उन्होंने 9 सवालों के सही जवाब दिए। करीम बख्श साहब टंडो मोहम्मद खान से हमारे साथ जो हैं वो उनके 8.5 नंबर आए, 8.5 नंबर्स के साथ वो दूसरे नंबर पर है। फिर है मोहम्मद हमजा साहब कराची से, उनके 8 नंबर आए हैं। मसूद अली साहब कराची से, उनके भी 8 नंबर्स। शाजिया सिराज साहिबा के 7 नंबर्स हैं और 7 नंबर्स के साथ वो इस दौड़ में जो है वो समझे चौथे नंबर पर हैं। और चौथे नंबर पर वो अकेली नहीं, आयशा बलोच साहब भी उनके साथ हैं, उनके भी 7 नंबर। 7 score is secured by Shazia Siraj Sahaba as well as Aisha Baloch साहब। फिर है मोहम्मद इमरान जकरिया साहब DI खान से, उनके 6 नंबर्स हैं
मोहम्मद शर्जील आसिफ साहब कराची से, उनके 6 नंबर्स हैं। आसिफ इकबाल साहब कराची से, उनके भी 6 नंबर्स हैं। दोनों बाप बेटे के 6-6 नंबर्स हैं। आइलीन साहिबा के 6 नंबर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फायजा मुस्तफ़ा साहिबा के 5.5 नंबर, 5.5, 5.5, यानी किसी एक सवाल का आधा जवाब उन्होंने दुरुस्त दिया होगा। फजीला साहिबा जो सेकंड से हमारे साथ मौजूद रहती हैं, उनके 5 नंबर हैं। मोहम्मद जलील साहब के 4.5 नंबर हैं। मसूद अहमद लगारी साहब सांगड़ से हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनके 4 नंबर हैं। रबिया साहब हैदराबाद से 3 नंबर हैं उनके। आसिफ महमूद अवान साहब कराची से, उनका 1.5 नंबर है। यहाँ पर दरमियान में और कोई नहीं कि जिनके 2.5 हों, 2 हों, तो ऐसा कोई नहीं है। तो 3 के बाद फौरन हम आते हैं 1.5 पर। आसिफ महमूद अवान साहब के 1.5 नंबर हैं। आयशा तारिक साहिबा का 1 नंबर है, 1 स्कोर ओनली। इरम नाज साहिबा 1 नंबर। काजी मोहम्मद जब्बाद साहब हैदराबाद से, उनका 1 नंबर। और वकास अली साहब 0 पर। कुछ मेहरबान हमारे ऐसे हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने लेट सबमिशंस की थी। तो लिस्ट में मेरे सामने नाम उनके मौजूद तो हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनको मेंशन नहीं करना चाह रहा। तो ये हमारा स्कोर है। तो हमारी टॉप स्कोरर उसमें आयशा खान साहब हैं। तो वेल डन, ऑल तमाम को हम वेल डन कहते हैं। आयशा खान साहबा और करीम बख्श साहब और मोहम्मद हमजा साहब, मसूद अली साहब, शाजी असरार साहबा, आयशा बलोच साहबा और मोहम्मद इमरान जकरिया साहब और मोहम्मद शर्जील साहब और आसिफ इकबाल साहब और आइलिन साहबा, ये हमारे जो टॉप स्कोरर्स हैं। तो थैंक यू सो मच, आपके लिए शाबाशी, एक्सेलेंट, एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट। ये पहली मरतबा था और आप में से बहुत सारों को पता नहीं था कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अगले हफ्ते इसको मैनेज करने के हवाले से, जरूरी नहीं कि जिन्होंने जिस सवाल का सही जवाब नहीं दिया वो नहीं आता हो उसको, पर कने कने मैनेजमेंट जो इशू होता तो वक्त वो याद थी या नथी अचे, प्रॉम्प्ट हिकिड़े घट वक्त में तव्हांखे उस सवाल जो जवाब ॾियणो। तो IQ ऐं EQ बिन्हीं जो इम्तिहान होता है, ये आपके नर्व्स का भी इम्तिहान होता है। तो बहरहाल इसमें देयर इज नो फेल्यूर। तो बकप आप सबको हम शाबाशी देते हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया। एज फार एज हमारा जो क्लास असाइनमेंट था, जो हमने मश्क की थी, वो जिन जिन की सबमिशंस हुई हैं वो मैं आपकी खिदमत पेश कर लूँ, और फिर मैं अपने दोस्तों से, अपनी टीम से कहूँगा कि वो टोटल स्कोर्स की जो टेबल है वो आपके साथ जो है ग्रुप पर शेयर कर देंगे लेटर, क्योंकि इसमें तमाम जो हिस्से हैं वो ऐड होंगे। तो कल की असाइनमेंट के लिहाज से जिन्होंने जो सबमिट करवाई थी क्लास वर्क असाइनमेंट, उनमें नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नदीम अहमद सोहू साहब। उन्होंने जो MCQs थे वो लेट जमा करवाए थे, तो इसलिए उनकी लेट सबमिशन काउंट हुई, लेकिन उन्होंने क्लास वर्क असाइनमेंट 8:30 से पहले जमा करवा लिया था। उसके बाद फायजा मुस्तफ़ा साहिबा तव्हांजी असाइनमेंट भी जमा थी, 2 पॉइंट्स तव्हांजा बि आहिनि। नदीम अहमद सोहू साहब 2 पॉइंट्स तव्हांजे असाइनमेंट जा उहे आहिनि। ये पॉइंट्स अलग हैं, ये जो मैंने बयान किए ये अलग हैं, और ये जो 2 पॉइंट्स बयान कर रहा हूँ ये अलग हैं होंगे, और ये दोनों ऐड होंगे आपके प्रीवियस स्कोर्स में। और टोटल जो आपकी टेबल है, टोटल जो स्कोर पोजीशन है वो आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब की असाइनमेंट भी कल मेरे पास आ गई थी 8:30 बजे तक। मोहम्मद जलील साहब की असाइनमेंट भी 8:30 बजे के अंदर अंदर जमा हुई। अदील अहमद साहब हैदराबाद से, आपकी असाइनमेंट भी आ गई, 2 नंबर्स आपके भी हैं। इमरान साहब, जलील साहब, आपके भी 2-2 नंबर्स हैं। आइलीन साहब की असाइनमेंट भी क्लास वर्क असाइनमेंट कल आ गई, 2 नंबर्स उनके भी हैं। वकास अली साहब की असाइनमेंट भी कल 8:30 बजे तक आ गई, 2 नंबर्स आपके भी हैं। फजीला साहब तव्हांजो 2 मार्कूं तव्हांखे असाइनमेंट ते मिलनि थियूं। आयशा खान साहब हैदराबाद से, आपको भी 2 नंबर्स मिलते हैं। करीम बख्श साहब तव्हांखे भी 2 नंबर तव्हांखे मिलनि था तव्हांजी असाइनमेंट जा। रबिया साहब हैदराबाद से, आपको भी 2 नंबर्स मिलते हैं। मोहम्मद शर्जील आसिफ साहब और आसिफ इकबाल साहब कराची से 2-2 नंबर्स आपको भी उसके असाइनमेंट के दिए जाते हैं जो कि आपने जमा करवाई थी। मोहम्मद हमजा साहब कराची से, मसूद अली साहब, शाजी असरार साहिबा और आयशा तारिक साहिबा, आपके भी 2-2 नंबर्स आपके असाइनमेंट के जो है वो आपको मिल गए हैं। और जिनकी तरफ से हमें असाइनमेंट्स नहीं मिली कल की असाइनमेंट्स, उसमें आसिफ महमूद अवान साहब की नहीं मिली, आयशा बलोच साहबा की नहीं मिली, मसूद अहमद लगारी साहब की नहीं मिली, इरम नाज साहबा की नहीं मिली, और काजी मोहम्मद जब्बाद साहब की असाइनमेंट हमें नहीं मिली थी। तो ये जो टोटल स्कोर होगा वो टेबल आपके साथ जो है वो आज शाम तक, लेट इवनिंग तक शेयर कर ली जाएगी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और ऐड और करेक्ट इन स्कोर्स के हवाले से, जहाँ यहाँ तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनके हवाले से? Any questions? Otherwise, I should move forward.
if there's no question, we are coming to our table. सिंधी आयोटाजी पट्टी कक, जिसको कक कहा जाता है, ये भी आपसे सवाल हो सकता है कि what do we call सिंधी आयोटाजी पट्टी या सिंधी अल्फाबेटी पट्टी को हम, वो जो 20 पट्टियां हम पढ़ रहे हैं उसको ओवरऑल उन 20 जदवलों के मजमूए को क्या कहा जाता है, उसको कक भी बोला जाता है। सिंधी उर्फ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलें। याद रहे कि ये टेबल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें सुर भी याद रहें, हरकत याद रहें कि जबर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसे होगा, जेर का कैसे होगा, पेश का कैसे होगा, मुख्तलिफ हरूफ पर, और उन हरूफ से बनने वाले अल्फाज फिर लिखे कैसे जाएंगे, उनकी शक्ल कैसे होगी और सुनाई कैसे देंगे, ये मश्क हो रही है। और मुझे याद है, जैसे मुझे टाइम मिला तो हर एक हर्फ की आवाज़ जो अभी क्लियर नहीं हो रही आपके अज़ान में, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे ताकि अलिफ से लेकर ये तक आपको आवाज़ें ठीक से, आपके पास एक वीडियो मौजूद हो। जब कभी आपको समझ में ना आए कि ये दाल के नीचे जो दो नुक्ते हैं कैसे प्रोनाउंस होते हैं और ऊपर दो नुक्ते हैं, तो धाल और ढाल में क्या फ़र्क है, ये और ये में क्या फ़र्क है, ये और ये में क्या फ़र्क है, ये 4 हरूफ जो है एक जैसे हैं लिखने में भी और आवाज़ के सौतिया वाले से भी, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक 3-4 मिनट की वीडियो अगर होगी तो आप उसको 10 बार सुन सकते हैं, टू क्लैरिफाई द वॉइसेस एंड देयर शेप्स। तो वो होपफुली इस वीकेंड में आपके साथ शेयर कर ली जाएगी ताकि आपके लिए आसानी हो। हु विल टेल मी कि नाउ किसका टर्न है, अब किसकी बारी है कि हम जो है पहले तो ये बताएं कौन सी भी जो पट्टी है, कौन सी भी टेबल या कौन सी भी जदवल हम पढ़ेंगे इस सीरीज के लिहाज से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, कौन सी पढ़ेंगे? हु विल टेल मी कि अब जो है वो कौन सी भी, मैं सिर्फ नंबर पूछ रहा हूं, फिर वो कौन सी है ये बाद में पूछूंगा। कौन सी भी टेबल हम पढ़ेंगे, कौन सी भी जदवल हम पढ़ेंगे, कितनी पढ़ चुके हैं और कौन सी भी पढ़ेंगे अभी? हु विल टेल मी? आयशा खान here, sir. Who's there? जलील सर Can you repeat your name? फोर्थ टेबल पढ़ेंगे सर। Jalil sir, somebody else is with me. Please hold on. Who is here with me? The lady? आयशा खान से जी आयशा सर खान 5th साहबा, पढ़ेंगे अब। 5th पढ़ेंगे। Fifth. थैंक यू आयशा साहबा। जलील साहब आप फरमाइए। सर फोर्थ टेबल आज हमने पढ़ना है, जेर के बाद जो नेक्स्ट है। अच्छा, जेर वाली कौन सी भी थी? वो सर थर्ड थी सर, थर्ड। वो सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो 4th थी। You are perhaps you are not counting the basic alphabet table. That is first one. Basic alphabet table is first one. Then we have Adakhri Jadwal, then Zabar wali Jadwal, फिर Zer wali Jadwal. So this was 4th. Now we will be reading 5th one. ओके सर, ओके। Now we will be reading 5th one. What is that 5th one table? Who will tell me? Who will tell me? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर शादी सिराज। जी शादी साहिबा, कौन सी है 5वीं टेबल? सर पेश जो चार्ट आई थिंक। पेश जो चार्ट हम जदवल पढ़ेंगे। थे। कुछ आइडिया है कैसे पढ़ेंगे? कुछ आइडिया है क्या होगा उसमें? मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले वाले 3 हरूफ पर पेश लगाकर बताएं तो वो कैसे होगी? कुछ है आइडिया? हाँ नहीं। Can you pronounce alif be और बे? No? नो सर। ओके, थैंक यू। शादी इसरार साहिबा का फीडबैक आ गया। तो ये है कंटेंट्स, यानी ये आमाल नामा है जिस पर बार बार आते हैं, क्या कर चुके हैं, ऊपर वाली 4 टेबल्स कर चुके हैं। नंबर पहला है प्लेन चार्ट, सिंधी अल्फाबेट का प्लेन चार्ट, अलिफ बे से लेकर ये तक, ये प्लेन है। उसके बाद है अदाखरी जदवल, आधे हर्फ वाली जदवलें, फिर है जबर वाली जदवल, फिर है जेर वाली जदवल। अब हम आएंगे पेश जो चार्ट। जदवल चार्ट पट्टी एक ही चीज है, ये कंफ्यूज ना हो। देखें इसमें से एंड में किसी में चार्ट लिखा हुआ, किसी में जदवल लिखा हुआ। जदवल मीन्स टेबल, जदवल मीन्स पट्टी, जदवल मीन्स चार्ट। तो उसको उस सीरीज में हम जबर वाले अल्फाज पढ़ चुके, जेर वाले पढ़ चुके, पेश वाले अब पढ़ने हैं। नेक्स्ट वन इज जेर वाला चार्ट, पेश वाला चार्ट। उसके बाद हम मद की जदवल पढ़ेंगे, ओ की, ऊ की, ए की, आए की, और देन वी विल गो फॉरवर्ड टू ई जो चार्ट, अन जो चार्ट, इन जो चार्ट, उन जो चार्ट, आ जो चार्ट, ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, ए जो चार्ट, आए जो चार्ट, ए जो चार्ट, आए जो चार्ट। कल मैंने आपको बताया था कि मौज और फौज और औज में और सोच में क्या फर्क है। सो इज सो, औज इज आओ, इन दोनों में फर्क है। तो इसी तरह से ए और आए में फर्क है, और ये ई। तो ये 20 चार्ट्स हम पढ़ेंगे। वैसे अगर हम
करना चाहें तो देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ट्स जो कि मुख्तलिफ आवाजें सीखने के लिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वी विल हैव टू मूव टू ग्रामर, व्याकरणी टू। तो इसलिए पहले हम ये टेबल्स पढ़ेंगे ताकि आपके जहन में इन टेबल्स पढ़ने से तमाम हरूफ की अशकाल भी आ जाएं, उनकी आवाज़ें भी जहन में बैठ जाएं, सौती उनकी शक्लें बैठ जाएं, और आप फॉर्म करना सीखें मुख्तलिफ अल्फाज को। मश्क हम इसलिए करते हैं कि फॉर्म करना सीखें। अगर आप ही जेके जेके प्रैक्टिस क्यों था, जेका मश्क क्यों था, जो हम क्लास वर्क करते हैं, जो आप जमा करवाते हैं, अगर आप अलग पेपर पर कर रहे हैं तो उनको फाइल करते जाएं। अगर आप अलग पेपर पर कर रहे हैं तो उनको फाइल करते जाएं, और अगर आप उसी नोटबुक पर कर रहे हैं जिस पर आप रोज का क्लास वर्क करते हैं तो वो आपके पास महफूज होनी चाहिए, और फिर उसको मार्क कर लें कि ये मश्क वाला पेज है, क्योंकि रोजाना रफ नोट्स आप लेते होंगे। तो अगर अलग से पेपर से उनको ज़ाया मत कीजिएगा, उनको एक फाइल में लगाते जाइएगा, और फिर एंड में जो है दिस विल बिकम व्हाट दिस विल बिकम, आई विल टेल यू। ये भी आपको बता दूं कि हम आगे चलकर नेक्स्ट वीक से कुछ शीट्स पर भी काम करेंगे, बड़ी शीट्स जो ड्राइंग शीट्स होती हैं, फुल साइज शीट्स, उन पर भी काम करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसको शीट पर डिस्प्ले कैसे किया जाता है, ठीक है, उन शीट्स पर भी आपने काम करना है। तो यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर डूइंग दिस असाइनमेंट टू। और अगर पॉसिबल हुआ तो फिजिकली उन चार्ट्स को हम डिस्प्ले करेंगे अपने सेंटर में। अगर नहीं मुमकिन हुआ तो आप अगर उनकी तस्वीरें खींच के भेजेंगे तो वी विल डिस्प्ले ऑन आवर फेसबुक पेज एंड आवर वेबसाइट, कि उसमें जो क्लास वर्क की तरफ से हमारे लर्नर्स ने जो काम किया है वो चार्ट जितना खूबसूरत होगा तो वो दैट विल बी अ क्रेडिट ऑन योर पार्ट। लेकिन उसमें उन चार्ट में बयान क्या करेंगे आप, ये हम असाइनमेंट के तौर पर आपको देंगे। नेक्स्ट वीक से हम ये एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे ताकि आपकी एक एक्टिविटी हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। किसी भी चीज़ के साथ जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप यू बिकम परफेक्ट मास्टर एंड जॉकी ऑफ दैट फील्ड। सो इफ़ यू वांट टू बी जॉकी इन 3 महीनों में, तो वो तमाम चीज़ें कि जो आपको इन्वॉल्व करें इस लैंग्वेज के साथ, विल बी डूइंग। तो ये जो चार्ट है, पेश वाला चार्ट, उसका जो प्लेन रिवीजन है कल हम करेंगे, और उसकी मश्क हम परसों करेंगे। फिल वक्त मैं इस हर सेशन के आखिरी उस पे सेगमेंट पे आता हूँ, क्योंकि कल भी हमने किसी भी एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज वाला सेगमेंट जो है मिस किया था। मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ जो है उनको सिंधी में क्या कहते हैं, मुख्तलिफ आबी ज़खायर जो है उनको सिंधी में क्या कहते हैं, पानी के मुख्तलिफ जो ज़ख़ीरे हैं उनको, पानी जाते के मुख्तलिफ ज़ख़ीरा हैं उनकी सिंधी में छा चुका। आबी ज़खायर किसको कहते हैं, कोई बताएगा? एनीबडी, इज देयर एनीबडी टू टेल मी आबी ज़खायर किसको कहते हैं? पानी जा ज़ख़ीरा कंहिंखे चवंदा आहिनि, मतलब उन जा मिसाल ॾियो ॿ टे त कहिड़ा थी सघनि था? गिलास, जग, कोप, किटली या ॿियो कुछ? व्हाट इज आबी ज़खायर? आबी ज़खायर हम किसको कहते हैं? वाटर बॉडीज हम किसको कहते हैं कि यार ये वाटर बॉडी है? व्हाट डू यू मीन? क्या आपके जहन में एक खाका क्या आता है कि वाटर बॉडी से क्या मुराद है? एनीबडी? जी, हु इज देयर? फाइजा मुस्तफा। जी, फाइजा मुस्तफा। सर, कुदरती जेकी आबी ज़खायर आहिनि उन में दरिया अची वञनि था, समुंड अची वञनि था, ढंढूं आहिनि। ठीक है, बस एतिरो ई याद। थैंक यू फायदा। एनीबडी फ्रॉम उन्होंने सिंधी में तो बता दिया, हु विल टेल मी इन उर्दू आबी ज़खायर किसको कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल वाटर बॉडीज? व्हाट आर वाटर बॉडीज? वाटर बॉडीज कौन सी हैं? हु विल टेल मी? सर जलील अर्ज कर रहा हूँ, जैसे सर वो लेक होती है या डैम होता है जहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स यानी वाटर को इकट्ठा किया जाता है, जैसे तरवेला डैम है वो मट्टी से बना हुआ है, एक वो है, ये वाटर बॉडीज हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जलील साहब। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? अच्छा जी, तो वाटर बॉडीज हम उसको कहते हैं, जरूरी नहीं कि पानी स्टैग्नेंट हो, इट्स नॉट नेसेसरी। आयशा तारिक साहब, यू वांट टू ऐड? आयशा साहब, वाटर बॉडीज जो नेचुरली जहाँ पर भी वाटर पाया जाता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो जैसे ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स, कुछ भी हो सकता है। और सिंधी में उनके नाम मुझे नहीं आते। दंड लेक को कहते हैं, झील को शायद दंड कहते हैं। कहाँ से सुना आपने? दरिया नदी, जो सिंधी की बेसिक बुक्स हैं स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई जाती हैं, दरिया को नदी, जैसे दरिया सिंध को सिंधु नदी कहा जाता है। तो जितने नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर
वाटर है, और आर्टिफिशियल या मैन मेड भी हो सकते हैं, उन सबको वाटर बॉडीज कहा जाता है। राइट हिंदी में इनके नाम सीखेंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। राइट, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही था ये जवाब इनका। पहले उन्होंने कहा था कि नेचुरल, फिर मैं सवाल करने वाला था लेकिन खुद ही उन्होंने क्लेरिफाई किया कि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं, तो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, लेकिन पानी किसी भी बड़ी मिकदार में कहीं पर भी मौजूद हो तो उनके असां वाटर बॉडी चवंदा आहियूं। और जलील साहब, ज़रूरी नहीं कि स्टेगनेंट वाटर हो, वो अगर फ्लो करने वाली पोजीशन में भी हो तो भी जो है वो हम उसको काउंट करेंगे कि वो वाटर बॉडी है। इज देयर एनीबॉडी विद मी? इज देयर एनीबॉडी विद मी? सर अगर आ गए तो बात कर लीजिए प्लीज, अगर आ गए तो, नहीं तो म्यूट कर लीजिए। इज देयर एनीबॉडी हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन ओशन एंड अ सी? कोई मेरा मेहरबान, कोई हमारा स्टीम्ड लर्नर कि जो बता सके कि व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन एन ओशन एंड अ सी? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन ओशन एंड अ सी? जी आयशा तारिक साहबा। ओशंस जो हैं वो यूनिक है और उनकी तादाद डिफरेंट नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती। जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, इसी तरह 5 ओशंस हैं जिनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन ओशन। ये 5 जो हैं, ये 5 ही रहेंगे हमेशा। और सीज जो हैं वो उससे छोटा होता है, ओशन से साइज में छोटा होता है, जैसे अरेबियन सी। इस तरह डिफरेंट साहिलों के हिसाब से उसको नाम दिए जाते हैं, और उसके नाम रीजनली डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ओशंस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड 5 ही हैं, जिनको 5 इंडियन ओशन, वही मैं पैसिफिक कहने वाला ओशन। था कि आप उसको इतने बड़े ओशन को आप गर्दानती ही नहीं कि कुछ वो सिंधी में कहते हैं अक्की नथी बुढ़े तां हेॾे वॾे जेको आहे सो दरिया ते हुन ते समुंड ते। माय This is- मिस्टेक। लेकिन ये कि सीज जो हैं वो ओशन से छोटे होते हैं, वो तादाद में काफी सारे हैं, और उनके मुख्तलिफ नाम जो हैं वो रीजनल उनकी लोकेशन के हिसाब से हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शादी साहबा, आयशा तारिक साहबा, सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जनाब, तो पहले आते हैं अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। पर। वालेकुम सलाम जी, इमरान साहब। सर मैं काफी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इलाके में जो है वो इंटरनेट का मसला है सर। जी फरमाइए, अब आप कनेक्ट हो चुके हैं, सर फरमाइए। पानी के जखायर के बारे में आप पता कर रहे थे। देयर आर ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, द मेन 3 रिजर्वायर दैट इज चश्मा, तरबेला एंड मंगला। Sir, I'm not talking about reservoirs only. I'm talking about water bodies, water bodies. I'm not talking about dams only. Dam तो उनमें से एक है। मैं पूछ रहा था water body किसको कहते हैं। I'm not talking about dams. I know you are an agriculturalist and you have an expertise of talking about dams, but not talking about dams only. I was asking about water bodies किसको कहते हैं, तो उनको हम सिंधी में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल thank you for your input, sir, इमरान साहब। तो वाटर बॉडी, वेलकम। वाटर बॉडीज इन सिंधी, सबसे पहले आते हैं, सबसे बड़े से शुरू करते हैं। महासागर, ओशन को कहते हैं, जिसको बहर, उमीक, बहर उमीक, बहुत ही गहरा सागर। जैसे कि इस पर डिस्प्यूट है कि 5 हैं या 6 हैं, लेकिन बहरहाल इस पर अग्रीड है सभी कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन के बाद अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, हमारा जो सिंधियन सी है। दिस इज, जब सिकंदर यहाँ पर आया, सिकंदर यूनानी, लोग उसको सिकंदर आजम कहते हैं, मैं नहीं कहता। इंसान के कातिल को मैं नहीं आजम कह सकता, मैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट नहीं कह सकता इंसानियत के कातिल को। तो वो जब यहाँ पर आया तो उस दौर के मैप्स में सिंधी में इंग्लिश में एक किताब है, सिंधी के बहुत बड़े आलिम आगा सलीम साहब ने लिखी है, जिसके नाम पर भी इख्तलाफ था, और उस इख्तलाफ का इजहार भी मैं आगा सलीम साहब के साथ उनकी ज़िंदगी में कर चुका। वो था अलेक्जेंडर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। मैंने कहा कॉन्क्वेस्ट क्यों, दिस वाज इन्वेजन। तो उसमें जो मैप्स हैं तो उसमें भी ये सिंधियन सी है, असल में सिंध से ही हिंद निकला है, फिर उसको सिंधी समुद्र को हिंदी समुद्र कहा जाने लगा। तो ये इंडियन ओशन जो आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली एंशिएंटली एंड हिस्टोरिकली दिस इज नॉट अ हवाई फायर, दिस इज हिस्टोरिकली सिंधियन सी, जिसको अब जो है वो इंडियन ओशन अलग हो गया और एक छोटे से टुकड़े को
जो कि पाकिस्तान के साहिल से या फिर पाकिस्तान के साथ या फिर ओमान के साथ, मस्कत ओमान के साथ टच करता है, उसको हम अरेबियन सी कहते हैं। लेकिन दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ सिंधियन सी हिस्टोरिकली। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिंधियन सी और नाउ इंडियन ओशन प्लस अरेबियन सी मौजूदा दौर का, उसको मिलाकर सिंधियन सी, माजी का सिंधियन सी है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द सागर्स। सागर का नाम आपने सुना होगा क्योंकि मुख्तलिफ इंडियन गानों में भी इस्तेमाल होता है। तो सागर इज बेसिकली हमारा लफ्ज, ठीक है। सागर, सागर इज समंदर, महासागर इज, महा मीन्स बड़ा। मेहमान का अगर आप करेंगे इश्तकाक तो वो होगा महामान, बड़े, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी एहतमाम, बड़े एहतराम वाला। महा मीन्स बड़ा, मान मीन्स मर्तबा, जिसका मर्तबा बड़ा हो, मेहमान। ये और बात है कि हम खुश नहीं होते मेहमान के आने से, लेकिन वो महामान है यानी बड़े मान वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़े एहतराम वाला। तो महा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो महासमान और महासागर यानी बड़ा सागर, बड़ा समुद्र, बहर जिसको बोला जाता है, ओशन, दैट इज कॉल्ड ओशन इन इंग्लिश एंड महासागर इन सिंधी। दो अल्फाज पर मुश्तमिल ये मरकब लफ्ज है। महा मीन्स बड़ा, मीम पर जबर, हे और अलिफ जबर के हरकत के साथ आपस में मिले हुए, सागर सीन और अलिफ आपस में मिले हुए, गाफ पर या गे पर जबर और रे जो है वो रे पर पेश, सागर। अगर ज्यादा प्लूरल की बात करेंगे तो हो जाएगा महासागर, ठीक है। महासागर इज वन, महासागर इज बहुत सारे सागर, बहुत सारे समंदर। सागर मीन्स समंदर। और सागर अगर यहाँ पर गैन आ जाए तो वो हो जाएगा पैमाना या जाम, जिसमें मतलब जो शायरी में जिसका जिक्र होता है, जिसमें शराब डाली जाती है, वो सागर है। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, तो सागर नहीं है। ऐ सागर की लहरों, दैट इज सागर मीन्स ओशन और मीन्स समंदर। लेकिन सागर जो है वो नदिया से दरिया, दरिया से साहिल और सागर से गहरा जाम, वो जो कहते हैं सागर जो है वो सागर, सागर सिद्दीकी इस सागर गैन से, वो अलग लफ्ज है। सागर इज समंदर, महासागर इज बड़ा समंदर, बहर यानी ओशन, ठीक है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा छोटा उस पे आते हैं, जो हमने समंदर और ओशन के दरमियान, जो ओशन और सी के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट किया था। तो समंदर को सिंधी में बोलते हैं समुद्र, सागर भी बोलते हैं, लेकिन एक और लफ्ज इंट्रोड्यूसिंग एन अदर वर्ड, समुद्र, ठीक है। समंदर में दाल बन जाएगा, दाल और रे बन जाएगा डाल, समुद्र। सीन पर जबर, मीम और नून, ये नून गुना है यहाँ पर, मीम और नून पेश के साथ मिले हुए, डाल पर पेश, समुद्र, समुद्र, यह है समुंदर यानी सी। समुंदर को, सी को सिंधी में समुद्र कहा जाता है, ठीक है। अरबी समुद्र या गाढ़ो समुद्र, रेड सी को गाढ़ो समुद्र बोला जाता है, या मुर्दार समुद्र, बहरे मुर्दार को जो है वो डेड सी को, हालांकि वो सी नहीं है, वो अपने वो एक चैनल है जो कि उर्दन और इसराइल के दरमियान है, जिसमें सॉल्ट की तादाद इतनी ज्यादा है, इतनी भारी है कि आप उसमें जब डुबकी लगाते हैं तो वो आपको खींच के ऊपर लाता है, वो कभी डुबो नहीं सकता आपको, क्योंकि उसमें सॉल्टिश जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है। तो वो बहरे मुर्दार, तो मुर्दार समुद्र, समुद्र इज समंदर, which we call sea in English. Clear? फिर आता है समुद्र से क्या निकलता है दरिया। अब उर्दू में बोलते हैं दरिया, सिंधी में उसके साथ लगेगा हमजा पेश, दरिया उ, प्यार दरिया उ आ, दरिया बिलट जी थोने। दरिया में अशार की मिसालें देता जा रहा हूँ आपके साथ। दरिया उ, और ज्यादा दरिया होंगे प्लूरल में तो इसी पेश को आप जबर में कन्वर्ट कर लेंगे, दरिया अ, दरिया अ, ठीक है। सिंधी में कहीं कहीं पर इस हमजा की जगह पर हे भी आता है, दरिया हो भी लिखा जाता है, वो भी सही है, दरिया हो। और उसको भी जमा करेंगे तो दरिया है, ठीक है, दरिया है। हैदर बख्श जतोई बहुत बड़े शायर और पोलिटिशियन गुजरे हैं, और उनकी एक शुरा आफाक नज़्म है, भली आए जी आए दरिया शाह, यानी वो दरिया शाह जब उस जगह पर कि जहाँ से वो सिंधु दरिया, जहाँ से इंडस, जहाँ से मैरान, जहाँ से रिवर इंडस दाखिल हो रही है सिंध में, तो वहां पर खड़े होकर वो उसको खुशामदीद कह रहे हैं, भली आए जी आए दरिया शाह, यानी दरिया शाह है ना, बड़ी दरिया, बड़े दरिया, द जियॉन्ट इंडस रिवर। दरिया उ, उसी दरिया में हमजा पेश आएगा तो दरिया उ हो जाएगा, यानी रिवर, राइट।
रिवर, दरिया इज दरिया इन सिंधी। मूविंग फॉरवर्ड, दरिया से निकलते हैं कैनाल्स। ये याद रखिएगा कि बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, हम चंद का जिक्र कर रहे हैं, हम सिर्फ चंद का जिक्र कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो आपके जहन में। इन अल्फाज को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरह से करेंगे और क्या बोलेंगे, तो इसलिए, वरना तो बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, यानी कोई 20-30 तो होंगे आराम से। तो उनमें से, और वो भी मैंने छोड़ दिए हैं जिनके नाम हम अंग्रेजी में ही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे डैम है, डैम को सिंधी में डैम बोला जाता है, उर्दू में डैम बोला जाता है। तो मैं उन अल्फाज का जिक्र कर रहा हूँ जो टिपिकली सिंधी में किसी और लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सॉरी। तो नहर को बोलते हैं, अब दरिया से निकल रहा है नहर यानी कैनाल, उसको बोलते हैं वाह। वाह, वाह, वाह जो है ना, वाह वाह वाली, वाह वाह, वाह वाह भी सिंधी में वाह वाह ही बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर हे पर पेश जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा वाह, मीन्स नहर या कैनाल। वाव अलिफ जबर वाह, हे पेश हु, वाह मीन्स कैनाल, वाह मीन्स नहर या कैनाल। क्लियर? फिर उस नहर में से क्या निकलता है? छोटी छोटी शाखें निकलती हैं, चैनल्स निकलते हैं, चैनल जिसको बोलते हैं। हैदराबाद वाले जानते होंगे, ओल्ड प्लेली, न्यू प्लेली, फिर चैनल उसमें से निकलता है। यानी ओल्ड प्लेली, न्यू प्लेली, दरिया सिंध से निकलने वाली नहरें हैं, फिर उसमें से चैनल। जो चैनल है उसको सिंधी में बोलते हैं शाख। शाख वही है, ब्रांच जिसको बोला जाता है, जो दरख्त की शाख होती है वही है शाख, ठीक है। लेकिन खे पर जबर आ जाएगी, उसी उसूल के तहत जो कि चलता आ रहा है कि आखिरी लफ्ज पर हरकत होगी, जेर या जबर या पेश कोई न कोई सुर होगा, सिवाय उन अल्फाज के। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधी की खूबी है कि उसके हर लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जेर या जबर या पेश कोई ना कोई आराब, कोई ना कोई हरकत आएगी, सिवाय उन अल्फाज के जो डैश, सिवाय उन अल्फाज के जो हरूफ इल्लत पर खत्म होते हैं, जो वॉवल्स पर खत्म होते हैं। ये भी सवाल हो सकता है। तो शाख इज चैनल, और अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो शाखूं हो जाएगा। खे के बाद वाव और नून गुन्ना पेश के साथ आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा शाखूं, बहुत सारी शाख, ठीक है। शाखें जैसे बोला जाता है, शाखे में ये की जगह पर वाव आ जाएगा तो सिंधी में शाखूं बन जाएगा। शाख इज फेमिनाइन इन सिंधी, शाख जैसे उर्दू में फेमिनाइन है। चैनल जो कि नहर से निकलता है, समंदर में दरिया आकर गिरता है, दरिया से निकलती हैं नहरें, नहरों से निकलती हैं शाखें, ठीक है। उसके बाद है झील, कुछ नेचुरल होती हैं, यानी जब कोई बहुत बड़ा फ्लो आता है वाटर का, उसके बाद फिर चारों तरफ अगर पहाड़ियां हों तो वो दरमियान में या पहाड़ियां हों या सहराई टीले हों। ये याद रखें कि झील जहां पर भी होगी या तो वो सहराई इलाका होगा या तो वो पहाड़ी इलाका होगा, या उनजे चौधारी बुट्ठ हूंदो, यानी या तो उनजे चौधारी जाबलू इलाइक़ो हूंदो या उहो जेको सुबारियासो इलाइक़ो हूंदो। पट ते कॾहिं बि तव्हांखे घटि, तमामु घटि, जीअं कंबर शदाद कोट वारे पासे ड्रिग ढंढ ऐं लंग ढंढ, पर उन में बि अहिड़े नमूने सां फॉर्मेशन आहे ज़मीन जी, जो विच में हिकिड़ो हुनखे खॾो मिलियो आहे जंहिंमें पाणी जमा थी वियो आहे, तंहिंजे करे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ढंढ। तो झील को, लेक को इंग्लिश में सिंधी में ढंढ बोला जाता है। ये अगेन ढाल वही है या ढे वही है जो ढगो वाला था, जो अभी सवाल मैंने दिया, ढगो, ढंढ, ढगो, ढगो मीन्स ऑक्स, जो अभी पढ़ा हमने कि ढाल की जगह पर कौन सा जानवर डिनोट होता है, तो ये वही ढे है। तो ढे और नून, यहाँ पर नून गुन्ना है, जबर के साथ मिले हुए हैं, ढन, फिर ढे पर जबर है, ढंढ, ढंढ। मुश्किल है और फोनोटिकली शायद मैच ना करता हो झील जैसी खूबसूरत जगह के साथ, जैसे हमने इंडोलेंट का जिक्र किया था। ये देखें, फोनेटिक्स आपके कान को बताएंगे कोई सख्त चीज का जिक्र हो रहा है, किसी हथौड़े का जिक्र हो रहा है। ये एस्थेटिकली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप समझ सकते हैं कि फोनेटिकली झील, जैसे सैफुल मलूक झील है, जैसे कींजर झील है, जैसे मंछर झील है, तो उसको देखकर जो खूबसूरत नजारा आता है उसके लिए एक सॉफ्ट लफ्ज होना चाहिए था, कोमल लफ्ज होना चाहिए था। ये एक खासा करख्त लफ्ज है, सख्त लफ्ज है, थोड़े टाइप लफ्ज है, लेकिन बहरहाल है तो वो लैंग्वेज का हिस्सा है तो हम उसी को पढ़ेंगे। लेकिन फोनेटिकली इससे कोमल लफ्ज होता है, जैसे झील। झील वाकई ऐसे लग रहा है कि किसी कोमल चीज का हम जिक्र करें। आई होप यू गॉट इट। तो झील, लेक, उसको सिंधी में ढंढ बोला जाता है, ढंढ। और इसका अगर प्लूरल करेंगे तो वाव और नून गुन्ना मिल जाएगा, ढंढू हो जाएगा। एक, दो या दो से ज्यादा अगर हैं, थोड़ी देर में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सेशन, लेकिन थोड़ी देर के लिए कनेक्ट कीजिएगा, आखिरी 3-4 स्लाइड्स हैं।
टू कंप्लीट देम, ताकि हम ये सेगमेंट मुकम्मल कर सकें और फिर वाइंड अप कर सकें। तो थोड़ी देर में जैसे डिस्कनेक्ट हो तो कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ढंढ का जो प्लूरल होगा वो वाव और नून गुन्ना, नून गुन्ना वैसे ही लिखते हैं, लेकिन मैं नून गुन्ना इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रोनाउंसिएशन उसकी गुन्ना वाली होगी। ढंढू बन जाएगा, यानी ये जो ढंड लिखा हुआ उसके बाद वाव और नून गुन्ना आ जाएगा। तो ढंड, ढे और नून, ढन, ढे पर जबर, ये ढंड, वन ढंड, वन लेक, वन झील। वाव नून ढंढू, यानी दो या दो से ज्यादा झीलें, उसको ढंढू बोला जाता है। तो दिस इज ढंढ एंड दिस इज ढंढू, यानी झील। वी आर टॉकिंग अबाउट झील, लेक। मंचर झील, मंचर ढंड। कींझर झील, कींझर ढंड। हडेरो झील, हडेरो ढंड। हालेजी झील, हालेजी ढंड। तो हम जिक्र कर रहे थे ढंड का, यानी झील का। झील को सिंधी में ढंड बोला जाता है। थोड़ा सा शायद उनके लिए कि जिनकी मादरी जुबान नहीं है, शायद थोड़ा मुश्किल हो उसको प्रोनाउंस करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोनेटिकल इसके साथ मैच नहीं करता, लेकिन बहरहाल दिस अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड वी हैव टू लर्न। व्हाट डू यू कॉल झील, जब तक कोई नया लफ्ज ईजाद नहीं होता। तो ढंड कहते हैं झील को। उससे पहले हमने क्या लर्न किया? उससे पहले लर्न किया शाख, जो कि चैनल को बोला जाता है। उसके बाद आते हैं तालाब। ये तालाब, पॉन्ड, छोटा सा तालाब, और उसमें मुख्तलिफ क्रीचर्स होते हैं। और तालाब और झील की जो फॉर्मेशन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, ये याद रहे कि कुछ नेचुरल झीलें भी हैं और कुछ आर्टिफिशियल झीलें भी हैं। और अब तो आपको पता है कि ये फार्म हाउसेस वगैरह पर आर्टिफिशियल तालाब भी बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल झीलें भी बनाई जाती हैं। तो वैसे वाटर बॉडीज में स्विमिंग पूल भी आता है, लेकिन स्विमिंग पूल के सिंधी में स्विमिंग पूल ही बोलते हैं। यानी वो ऐसा लफ्ज है कि जैसे रेडियो, टेलीविजन, फोन, मोबाइल फोन, ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं, टेबल या ग्लास, उसको दोनों जुबान में एक ही बोलते हैं, तो उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया। तालाब को, पॉन्ड को सिंधी में तलाब बोलते हैं। रतन तालाब, आपको पता होगा, हैदराबाद वाले जानते होंगे, रतन तालाब इलाके का नाम है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पॉन्ड व्हिच यूज्ड टू बी कॉल्ड रतन तालाब। अब वहां पर तामीरात हैं, लेकिन उस इलाके को रतन तला कहा जाता है। ढाक तला, रतन तला, दीज आर मुख्तलिफ तालाब्स। तो सिंधी में बोला जाता है तलाउ, ते पर जबर, लाम अलिफ जबर के साथ आप मिले हो, तलाउ, हमजा पर पेश, तलाउ, यानी तालाब या पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड इज कॉल्ड तालाब या तालाब इन सिंधी, तालाब इन उर्दू, तालाब इन सिंधी, राइट। उसके बाद गालिबन ये आखिरी स्लाइड है वो है कुआं। कुआं या वेल को सिंधी में बोला जाता है खूह। खूह, खे और वाव आपस में पेश के सुर के साथ मिले हो, खूह, हे पर पेश, खूह, खूह इज कुआं, वेल। ठीक है, खूह इज कुआं, वेल। तो वेल को जो है वो कुआं कहा जाता है। तो ये मैं एक बार फिर मैं रिवाइज करता चलूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। महासागर, बहर उमीक को कहा जाता है, उमीक सागर को कहा जाता है, बड़े समंदर को कहा जाता है। उर्दू में भी सागर का लफ्ज इस्तेमाल होता है और काबिल फहम है सबके लिए। तो महासागर पाण चवंदा आहियूं वॾे समुंड खे, ओशन के। ठीक है, महासागर माना वॾो समुंड। समुद्र यानी आम समुद्र, समुद्र मीन समंदर, सी, SEA, सी, समुंदर, उसको समुद्र बोला जाता है। बहुत सारे समंदर हो या दो से ज्यादा हो तो समुद्र, सिर्फ जबर के साथ उसका प्लूरल सिंगुलर चेंज हो जाएगा। महासागर, सागर यानी एक, ये रे पर पेश है, और र मीन्स बहुत सारे, सागर। दरिया या दरियाहो इज वन दरिया, दरिया इज बहुत सारे दरिया, या दरिया इज बहुत सारे दरिया। उर्दू में सिर्फ दरिया लिखा जाता है, सिंधी में दरिया लिखना जरूरी होता है, राइट। उसके बाद वाह, नहर को बोला जाता है वाह। बहुत सारे अगर प्लूरल हो, बहुत सारी नहरें हो तो वाह। उर्दू में नहर फेमिनाइन है, सिंधी में वाह इज मैस्कुलाइन, राइट, मर्द है, इज अ मेल। वाह, वाह खोट रहा है, हो पेश लगाने से ही उसकी जिन्स जो है वो क्लियर हो रही। अच्छा, शाख इज फेमिनाइन, जैसे उर्दू में है शाख, चैनल को कहा जाता है जो कि नहर से निकलती है, जेका असांजे वाह में निकलती है। शाख अगर एक है तो शाख है, अगर ज्यादा हो तो वाव नून लग जाएगा, वाव नून गुना शाखों बन जाएगा, राइट। उसके बाद झील यानी लेक, ढंढ, ढंढ झील, और ज्यादा है तो ढंढू यानी मुख्तलिफ झीलें, राइट। तलाउ यानी तालाब या पौंड, तला
अगर इसी हमजा पर जबर आ जाए तो दो या दो से ज्यादा तालाब, पॉन्ड्स। और आखिर में कुआं, वेल, यानी खूह। ठीक है। खे और वाह, ये खे है जो काफ की तरह सिंधी में लिखा जाता है कि ये काफ है सिंधी में, और खे है सिंधी में। खूह, खे और वाह पेश के साथ मिले हुए और हे पर पेश है, तो ये बन जाएगा खूह यानी कुआं या वेल। कोई चीज क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, आस्क एनी क्वेश्चंस, या फिर ओवरऑल इस पूरे आज के सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस प्लीज। I hope this is clear. Um, all slides are clear. No, Any sir. No, sir means you're not clear. No, sir means you're not clear. No किसका जवाब था? No सर किस? जी जलील सर। आई एम जलील, और थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्वेश्चन रहता नहीं अभी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप के everything is clear, and I'll ask my team to share the total scores of the last two assignments and the current two assignments, the total of these all four assignments with you. एंड नेक्स्ट वीक से जो है वो आपको आपके टीआर नंबर्स भी असाइन होंगे, दोज विल बी योर रजिस्ट्रेशन नंबर्स। और वो 2 हफ्ते के बाद हम क्यों असाइन कर रहे हैं, इसलिए असाइन कर रहे हैं 2 हफ्ते के बाद, ताकि आयशा तारिक साहब, यू हैव अ क्वेश्चन। आयशा साहब, सर आयशा तारिक साहब, यू हैव अ क्वेश्चन। यस सर। जी सर अगर आप कोई ऑनलाइन रिसोर्सेस ऐसे हैं, जैसे ऑनलाइन डिक्शनरीज होती हैं आजकल, जी। उर्दू और इंग्लिश की भी अवेलेबल हैं, तो सिंधी की कोई ऐसी ऑनलाइन सिंधी रिसोर्स और है इंग्लिश की जहाँ भी पे अवेलेबल डिक्शनरी? है। आपके लिए खुशखबरी है कि हमारी ही सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की एक ऐप है, और वो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आपके साथ उसका लिंक शेयर कर लें प्ले स्टोर का, या आईफोन पर आप डाउनलोड कर सकें। तो उसमें वो डिक्शनरी जो है एट अ टाइम सिंधी टू सिंधी भी है, सिंधी टू इंग्लिश भी है, इंग्लिश टू सिंधी भी है, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी है। यानी आप अंग्रेजी में लफ्ज टाइप करेंगे तो सिंधी में आपके सामने उसका लफ्ज आ जाएगा कि वो क्या है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ लुगात जो हैं सॉरी सिंधी की मर्ज की हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स है उसका है जामे सिंधी लुगात, जो कि सिंधी जुबान ही नहीं बल्कि फारसी और अरबी और अंग्रेजी के बहुत बड़े आलिम, अदीब, दानिश्वर डॉक्टर नबी बख्शान बलोच अल मारूफ डॉक्टर N.A. बलोच की जो तरतीब दी हुई लुगत है 5 जिल्दों में, जो कि बुनियादी पहली लुगत थी सिंधी की, उसका पहला सोर्स वो है। और उसमें फिर और भी लुगात जो है मर्ज की गई हैं। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, कि अगर आप लिखें फॉक्स, आप टाइप करें इंग्लिश में, तो उसका सिंधी में लूमड़ या लूमड़ी आ जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा वो पूरी वजाहत उसकी आ जाएगी। और उसमें ये भी वजाहत होगी कि बुनियादी तौर पर लफ्ज़ अरबी का है या सिंधी का है, उसकी साइंस है उसमें। तो ये ऑनलाइन भी अगर आप अपने ब्राउज़र से करें तो वो अब आ जाती है सामने। उसको भी मैं कहूँगा कि अपनी टीम से कि वो आपके साथ शेयर करें लिंक, और ऐप का भी लिंक शेयर करें, बल्कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की जितनी भी 3-4 ऐप्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, तो वो आपके लिए आसानी होगी, और डिक्शनरी में भी आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, वरना शायद मैं शेयर ना करता, यानी याद नहीं आता मुझे, लेकिन ये आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा तो तव्हांजे लाइ आसानी थींदी। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, यू हैव अ क्वेश्चन। सर मेरे नेटवर्क में मसला है, जिसकी वजह से मुझे बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, लिसनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कल के लिए कोई असाइनमेंट है सर, ये कल के लिए पता कोई करना था। नहीं, कल के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, कल के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन यह है कि मैं कहूँगा अपनी टीम से कि जल्दी जल्दी एपिसोड्स ऑनलाइन कर दें, ताकि मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं जो रह गई हैं वो आप रिवाइज कर सकें, दोबारा से देख सकें। राइट। थैंक यू सर, बहुत वेलकम मेहरबानी। वेलकम। मौला खुश आयशा रखे। आयशा तारिक साहब, यू हैव अ क्वेश्चन। आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर शेयरिंग दीज रिसोर्सेज। अगर ये डिक्शनरीज मिल जाएंगी हमें ऑनलाइन, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि फ्रीक्वेंटली व्हेनेवर नीडेड इनको हम अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट जैसे टीचिंग से वाबस्ता हैं अक्सर लोग यहाँ पर, तो अगर ऐसी कोई वेब रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जो टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ये चार्ट्स आपने बताए, तो इस तरह की इमेजेस या पीडीएफ्स या टीचिंग नोट्स, तो दैट विल आल्सो बी रियली हेल्पफुल।
That will I have to check about कि मैं क्योंकि मेरा बराह रास्त नहीं है ताल्लुक ऐसे resources से, लेकिन let me ask the institutions like elementary college. We have historical institutions in Hyderabad जो कि बहुत पुराने हैं, एक सदी पुराने institutions हैं, like elementary college for men, for women. तो उनके कोई ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर हैं मौजूद कि जो टीचिंग के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, स्पेशली फॉर सिंधी सब्जेक्ट, तो लेट मी आस्क, और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये तो मैंने डिक्शनरी का इसीलिए सर दस्त आपके साथ शेयर किया कि वो हमारी चीज़ है, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी की अपनी चीज़ है। वो तो मैं फ़ौरन अपनी टीम से कहूँगा कि इस क्लास के फ़ौरन बाद आपके साथ शेयर करें, ताकि आप उससे इस्तेफादा करना शुरू कर लें थ्रू ऐप टू और ऑनलाइन टू। अगर आप ऐप नहीं भी कर रहे तो ऑनलाइन भी आप, अगर आप लैपटॉप से या इवन अपने क्रोम के ब्राउज़र से, अपने फ़ोन से भी करेंगे तो आपको वो रिसोर्सेज जो हमारे हैं राइट अवे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिनके लिए मुझे पूछना दरकार है तो लेट मी आस्क, और अगर कोई ऐसा रिसोर्स होगा तो श्योरली हम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच आयशा तारिक साहबा। और अॼु के प्रोग्राम मूंखे सदाई प्रोग्राम अची वेंदो आहे में। अॼु की क्लास में जिन पार्टिसिपेट कयो, आयशा खान साहिबा, आयशा तारिक साहिबा, मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, रबिया साहिबा, शाज़िया सराज साहिबा, करीम बख्श साहब, नदीम सोह साहब, मोहम्मद जलील साहब, फ़ाइज़ा मुस्तफ़ा साहिबा, थैंक यू सो मच। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी, एंड एवरीबडी हु वाज अराउंड who participated in this class, thank you so much। आपकी तवज्जो से, आपके अटेंशन से ज़ाहिर है कि हम भी we get, it's a source of inspiration for us to extend more and more wisdom and knowledge to you। और कोशिश रहेगी कि इन 3 महीनों में हम भी आपसे सीखें और आप भी इतना कुछ सीख जाएं कि क्लास ज्वाइन करने से पहले और बाद में एक वाज़ेह फ़र्क हो सिंधी लर्निंग के हवाले से। मुझे कहते हैं यासिर काज़ी, आपसे चाहता हूँ इजाज़त। सुभाणे इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी ऐं शाम जो 5 लॻे बशर्ते हयात ऐं दुरुस्तगी हालात पंहिंजो मूंखे उम्मीद है तव्हां ख्याल भी रखंदो, एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योर माइंड एंड योर हेल्थ, क्योंकि एक जो हेल्दी माइंड है, एक हेल्दी बॉडी जो है हेल्दी माइंड को इंश्योर करती है, और ये ज़रूरी है लर्निंग के लिए कि आप हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। दिलों के तुझदाई के रहम ना सदाएंगे, तेरा पे तेरा खैर, अल्लाह ने के बाद।